Bien, venidos a todos. Welcome everyone to today's webinar on VA Spanish that we are launching at Delhi Skill and Entrepreneurship University. We are joined by lovely Shalu and Sunil. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Chévere. Perfecto, muy bien. Perfect. So basically, to everyone out there who is watching this, today we are going to talk about one of our very happening courses, which is on Spanish. And just to before we start talking about the course itself at Delhi Skill and Entrepreneurship University, I want to introduce our guests here. So starting with Shalu. Shalu is an author, linguist, and she's one of the first Indian origin trainers of Spanish language who has written books, and her books will also be introduced as part of this course. She teaches at various universities and institutions of repute. She's currently the founder director of Mundo Latino, and Mundo Latino as an organization has affiliations with leading Latin American embassies, as well as Mundo Latino has really done exemplary work in promoting Latin American culture in India. Sunil, great to have you here. Sunil, is the class of 1991 of IIM Lucknow and is an engineering graduate. He has been a serial entrepreneur and corporate leader. He has led position as CEO across, multinational companies and Indian conglomerates. He's the board advisor for Indo-Peruvian Friendship Association, which is a part of Embassy of Peru. And he's also the founder director of Mundo Latino. So great to have both of you here. So starting with the first question that I have for both of you is, why a 3-year course? Why do a 3-year course in Spanish? And there are many languages, German, French, the world of languages is just ever expansive. But why Spanish? Okay, maybe I'll take that on, Priyanshi, and thank you very much for such a warm welcome, and indeed a glorious moment for Mundo Latino to be collaborating with such a prestigious and esteemed university, the Delhi Skill and Entrepreneurship University. So congratulations for this huge upcoming launch and with all the preparations, and really, really happy to be a part of this inauguration, if you may. So on that note, I think we are approached with this question several times around the fact that there are so many foreign languages available to students and professionals today, be it the European languages or Far Eastern languages, and why Spanish? And I believe that it comes from the fact that if we first of all look at the footprint of Spanish as a language, it is over 500 million speakers of the language across the globe, which is only next to the Mandarin, which is of course primarily one country. It is the official language of 21 countries across 4 continents, inhabited continents. And most importantly, what happens is that when you think of avenues for professional pursuits, careers, travel, leisure, and today's times even music and entertainment, in all of those, Spanish has actually become like a home language to almost all cultures and countries across the globe. The combined speakers of German and French put together, since you mentioned those 2 languages in particular, multiply that by 3, and there are still larger number of Spanish speakers on the planet. And one of the things, Priyanshi, interestingly, what happens is that most people relate at times to Spanish to Spain, which of course is a very, very important part of the language. But there's a whole region, the Latin American region, the LATAM region, which actually people are not very conversant with. So they do not relate to it as something which is global in nature, which is why it is very important for you to understand why Spanish. And we'll know more about it when we are probably going to have interactions and questions. But this is the background of how there are an incredible number of opportunities. If you look at jobs, so maybe if I could just quickly read out an interesting paragraph, which says that over 50 Indian conglomerates
over $15 billion US of business with LATAM alone. $15 billion of business with This is Latin amazing. American region alone. Yeah, yeah. More than 300 companies from Spain alone have business interests in India, and this is growing. At any point in time, if you look up the various places where people look for jobs, over 1,500, 2,000 jobs are open for Spanish-speaking professionals. And these are jobs going at 5 to 15 lakhs per annum. I'm just talking of people who've done intermediate to advanced levels. So if you look at the statistic of the kind of interest that India is having towards Spanish-speaking regions and countries, it is predominant. The avenues arising from them are predominant. And like I said, the whole leisure and fun part of Spanish is in addition to this. Yes, and I have been part of that leisure and fun with salsa. There are many admirers of salsa in Delhi also. Okay, so thank you, Sunil, for putting such a wide breadth in perspective. I'll ask my next question in Hindi, and Shalu feel comfortable to respond in Hindi or English. Basically, Spanish ke Delhi mein and around Delhi and many other cities, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, बैचलर्स प्रोग्राम चल रहे हैं. तो जो हम DSEU में आपके साथ पार्टनरशिप में ऑफर करने वाले हैं, एंड स्पेशली बिकॉज यू आर डिजाइनिंग द कोर्स ऑन द सेम, क्या ऐसा अलग है जो शायद और जगहों पे या और इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, या फिर किस तरीके से इसको एक नया नजरिया that you are bringing on board? Sure. Aisa hai Priyanshi and all the listeners. First of all, let me thank Priyanshi for having us over here. And मेरे सारे प्यारे listeners जो हमें अभी इस तरह सुन रहे हैं, मैं आपको एक ये बात बताती हूँ कि लैंग्वेज की वैल्यू तब तक है जब तक आप उसको बोल सकते हैं. वैल्यू लैंग्वेज की किसी पेपर से नहीं डिसाइड होती, जो आप सीखते हैं उससे डिसाइड होती है. आप कितनी एक भाषा बोल सकते हैं, और यही है जो हम मुंडो लातिनो का हमारा सीक्रेट है. हम आपको जो स्पेनिश सिखाते हैं एकदम वैसे ही सिखाते हैं जैसे आप पहले दिन इस दुनिया में आए थे और कोई भी लैंग्वेज अपने साथ नहीं लेके आए थे. द फैक्ट इज वी आर नॉट बोर्न विद एनी लैंग्वेज. हम किसी भी लैंग्वेज के साथ पैदा नहीं होते हैं. हम पैदा होते ही कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं. तो इसीलिए जब आप मुंडो लातिनो पे आते हैं या जब आप इस यूनिवर्सिटी में आएंगे, हम आपको हैप्पी बर्थडे बोलेंगे और हम आपको बोलेंगे आज आपका जन्मदिन है, आज आपने हमारे स्पेनिश घर में जन्म लिया है, और आपको उसी तरीके से स्पेनिश सिखाएंगे जैसे आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखी है. लैंग्वेज एक्वायर करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसको अप्लाई करने की जरूरत है. और वही मेथोडोलॉजी हम अपने मुंडो लातिनो में यूज करते हैं, जो हम उसको बोलते हैं स्वर. स्पीकिंग, राइटिंग, इंटरैक्शन जो कि मेन है बीच में, इंटरैक्शन, रीडिंग, रोल प्ले, लिसनिंग. आप ये बाकी स्किल्स को लेके कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं. कम्युनिकेशन विच इज द आई, इट्स द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर करते हैं. और हम आपको बोलते हैं कि ये एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, आपको इसको अपनी लैंग्वेज बनाना है. सो वी वेलकम यू and we teach you the methodology जैसे आपने अपनी native language सीखी है. हम छोटी छोटी बातों से शुरू करते हैं. जब आप पैदा होते हैं तो सिर्फ रोते हैं, वह ये साउंड लेके आए आप, राइट? पर उसको कैसे हमने मोल्ड करना है, कैसे वर्ड्स, पहले हम आपको ओला, आदियोस ऐसे करके हाथ पकड़ के जैसे आप घर पे सीखते हैं, आपको ऊपर लेके जाते हैं, राइट? फ्रॉम 1 word to million words. So, ये मेथोडोलॉजी हम अप्लाई करेंगे और आशा करते हैं कि आप इस मेथोडोलॉजी से, इनफैक्ट प्रूवन है ये कि मुंडो लातिनो में बच्चे पहली ही क्लास में हमारी मेथोडोलॉजी के साथ इतनी बात कर सकते हैं और इतनी कॉन्फिडेंटली बात करते हैं कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस, अपनी लाइक्स, अपनी डिसलाइक्स उसी टाइम बता सकते हैं. सो ये मेथोडोलॉजी विल बी यूजिंग. थैंक यू. शालू, जस्ट एन एडिशनल क्वेश्चन टू दैट. तो एक है कि लैंग्वेज के बेसिक्स सीखना, तो आई एम प्रिज्यूमिंग एंड सुनील विल टेक दिस अप, बट उस लैंग्वेज के बेसिक्स के अलावा और क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स? आई थिंक दैट वन लाइट इफ यू कैन थ्रो ऑन द कोर्स. You want to go ahead? Go ahead. Go ahead. Okay. So I think the way the curriculum has been designed by Shalu ma'am here
She's ma'am to me because I also learned my Spanish from her, not from a classroom. And using the same methodology. I was born at that time in the Spanish family, so to say, and I learned Spanish. Coming back, इसमें ऐसा है कि जो methodology है उसके अंदर एक तो हम normally देखते हैं कि reading part है, जैसे बताया listening part है, writing part है, लेकिन उन सबसे ज़्यादा important is the ability to interact and communicate, role plays, जिसके बारे में शालू ने बात करी, वो बहुत ज़्यादा इसका एक पार्ट और हिस्सा बनने वाले हैं, which is the immersion in the language और cultural orientation. तो हमारी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिसके अंदर की स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन की बात करी जो शालू ने, वो बहुत कुछ एवेन्यूज मिलेंगे आपको. Do you want to talk more about those kind of avenues around the cultural workshops, etc., and all that you do? जी, आप अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ. स्पेनिश जब मैंने पढ़ानी शुरू करी तो उससे पहले मैंने हिंदी सीखी. हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं कि मैंने हिंदी सीखी. ये नहीं था कि मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती थी, लेकिन हिंदी के नुआंसेस क्या हैं, हम ये क्यों बोलते हैं, इसकी ऊपर मैंने रिसर्च करी और ये मैंने बात जानी कि स्पेनिश दिखती इंग्लिश की तरह है लेकिन उसकी ग्रामर हिंदी की तरह है. तो आप कभी भी कोई लैंग्वेज बोलते हैं उसको फीलिंग के साथ बोलना है. जब तक वो फीलिंग आपके अंदर नहीं आती वो लैंग्वेज आप नहीं समझ सकते. तो वो फीलिंग करने के लिए आपको कि आप उस चीज को समझे आप क्या बोल रहे हैं. ओला हमारे लिए एक फॉरेन वर्ड है जिसको हम ओला करके बोलते हैं, लेकिन एक नेटिव स्पीकर के लिए ओला में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं. जैसे मैं नमस्ते करती हूँ तो नमस्ते एक कनेक्टेड मेरे साथ एक कनेक्शन बनाता है. तो हम वो चीजें आपको कल्चरल वर्कशॉप्स, एप्लीकेशन ऑफ द लैंग्वेज इन द रियल वर्ल्ड, ये सारी कुछ मेथोडोलॉजीज के साथ आपके लिए लेके आते हैं और आपको सिखाते हैं, ताकि आप खाली उनको वर्ड्स मत समझिए जो आप बोलेंगे, आप उसको फील करें. और अगर आप उसके कल्चर को समझते हैं, वहाँ की चीजों को, उसके इतिहास को समझते हैं, तो आप अलग ही लेवल पे उसकी एप्लीकेशन ले जा सकते हैं. तो ये सब हम करेंगे वर्कशॉप्स, जो आपकी एक तो आप फॉर्मूला सीखते हैं कि इस फॉर्मूले से मुझे ये बोलना है, दूसरा उसको अप्लाई कैसे करना है, तीसरा उसको जीना कैसे है. तो वो जीना कैसे है इज द एप्लीकेशन वर्कशॉप पार्ट ऑफ इट. So if I may just add to that towards the end, the interesting thing is कि ऐसे हमारे को बहुत सारे देशों के बारे में जो स्पेनिश बोलते हैं उनकी डिफरेंट कस्टम्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, उसके बारे में पता चलता है. तो अगर वो नया साल कैसे मनाते हैं, वो देश दूसरे देश कैसे नया साल मनाते हैं, उनकी कोई प्रथा है, देयर आर सम डेट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर देम. तो कहीं पर मेक्सिको में कुछ होता है, कहीं पेरू में कुछ मनाया जाता है, कहीं बोलीविया में कुछ मनाया जाता है. तो उसमें हिस्ट्री के साथ साथ जब कल्चर को जोड़ते हैं और ये एक्टिविटीज को लेके आते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बच्चों को उनके इतिहास, उनके साहित्य के बारे में पता चलती है, which they would never otherwise know अगर वो सिर्फ एग्जाम की तैयारी करके मात्र नंबर लेने के इरादे से आए. Which is why this methodology and this whole setup is very different, Priyanshu. Great, Sunil. I think I also personally believe that language should not run solo. It has to be culturally intertwined if one has to really learn and live it, I think. So coming to my next question, which is around कि किस तरीके के, मान लीजिए स्टूडेंट्स ने कोर्स किया, 3 साल का कोर्स किया, और हमारे दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में हम लोग मल्टीपल एंट्री एग्जिट की बात कर रहे हैं कि अगर स्टूडेंट के सर्कमस्टेंसेस उनको किसी भी रीज़न की वजह से दे कैन गो अवे विद अ डिप्लोमा इन स्पेनिश और एडवांस डिप्लोमा एट द एंड ऑफ 2 years एंड देन फाइनली अ डिग्री इन स्पेनिश. सो किस तरीके के जॉब प्रोफाइल्स या कोर्स किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जैसे कौन से लेवल्स वो पहले साल में सीखेंगे ताकि वो एम्प्लॉयबल हो जाएं, या दूसरे साल में या तीसरे साल में, उस पर थोड़ा बताना चाहेंगे क्या? श्योर. सो प्रियांशी, क्लियरली ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, किसी के लिए भी गोल ओरिएंटेड लर्निंग है. ये लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग नहीं है, एंड मे बी इफ आई कैन से ये लर्निंग को कहीं ना कहीं अर्निंग से कनेक्ट करना है हमारे को इवेंचुअली. सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन करा गया है, जैसा आपने बोला लेटरल एंट्री एंड एग्जिट के लिए. तो जैसे अगर हम पहले साल को एक पहला मार्क मानते हैं, फर्स्ट ईयर, दैट कोर्स हैज बीन डिजाइन्ड इन अ मैनर कि जो इंटरनेशनल लेवल्स है. तो पहली बात तो ये है कि जो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है बीए स्पेनिश का,
आप जब ये कंप्लीट कर लेते हैं तो इसको अगर हम इंटरनेशनल CEFR जिसे हम कहते हैं, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस, जिसके अंदर की यूरोपियन भाषाओं का आप लेवल्स बता सकते हैं कि इंटरनेशनली आप किस लेवल पे हैं, उसमें हम इसको एक निवेल अवांजादो विच इज एडवांस लेवल विच इज B2 जो होता है, जैसे टोटल लेवल है किसी भी लेवल के लैंग्वेज, उसको 6 लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। B2 को एक एडवांस लेवल माना जाता है, इंडिपेंडेंट स्पीकर माना जाता है, जहां पर कि आपके लिए बहुत सारी कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज, एवेन्यूज, बड़ा कुछ होता है। ये एग्जिट होगा 3rd ईयर का, लेकिन मैं अभी रिवाइंड करके पहले साल पे आ जाता हूं। तो पहले साल के एंड पे स्टूडेंट जो है वो A2 इंटरनेशनल लेवल तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, जो कि बेसिक लेवल का पूरा कंप्लीशन हो जाता है। उस लेवल के ऊपर भी अच्छी बात है, आपको जान के अच्छा लगेगा सबको, जो लोग भी इस वक्त वेबिनार में हैं, कि कई बार लोग सोचते हैं कि शायद एक ही साल कराए, अभी क्या इसका वैल्यू निकल सकती है प्रोफेशनली, लेकिन है कई अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स ऐसी होती हैं प्रियांशी, जिसके अंदर की फॉर एग्जांपल BPOs वगैरह में कई बार होता है, और हमने अपने स्टूडेंट्स को देखा है। और इसका एक और कनेक्शन है, देयर एबिलिटी टू इंटरैक्ट। मैं वापस वहीं आ जाता हूँ, वो किसी और इंस्टीट्यूशन से शायद कह सकते हैं कि हमने B1 कर रखा है, B2 कर रखा है, लेकिन उनके कम्युनिकेशन स्किल नहीं होंगे। अब आपसे नौकरी पे जाके वर्क सिचुएशन में ग्रामर नहीं चेक कराई जाती, दे विल फर्स्ट वांट यू टू कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट, चाहे वो रिटन फॉर्म में है, चाहे कस्टमर्स के साथ है, चाहे क्लाइंट्स के साथ है, टीम मेंबर्स के साथ है। तो इतनी कम्युनिकेटिव उनकी क्षमता बन जाती है पहले साल के एंड तक, जो कि इंटरनेशनल A2 है, कि उनको जहां पर स्क्रिप्टेड, आप समझिए कोर्सेज, जैसे BPOs के अंदर जॉब्स हो कि स्क्रिप्ट है, आपको स्क्रिप्ट बोलनी है, पढ़नी है, इसमें बहुत जजमेंट नहीं है, टेक्निकल कॉन्वर्सेशंस नहीं है, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज पहले साल के बाद से भी मिल सकती हैं। तो वो क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन का स्तर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा A2 से भी शायद आगे ही होगा, कम नहीं होगा। Those are avenues which are available to people in KPOs and BPOs at the end of first year itself. दूसरे साल तक खत्म करते करते हम अपना इंटरमीडिएट में पैर रख लेते हैं, which is the B1 level, which is the beginning of the intermediate level, और वो हम B1 लेवल पूरा खत्म कर देते हैं और B2 की शुरुआत कर देते हैं, जो कि एडवांस लेवल है हमारा। तो 2nd ईयर खत्म करते करते हम जिसे कहते हैं कि नाउ यूर इन असिस्टिंग एम्प्लॉयबिलिटी। पहली वाली में लिमिटेड एम्प्लॉयबिलिटी, लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लेकिन उसके भी ऑप्शंस हैं, उनके पास विकल्प हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। 2nd ईयर में यू आर नाउ असिस्टिंग एक्टिव एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप ऐसे रोल्स में जा सकते हैं जिसमें कि आप जो फुली ट्रेंड आपके लोग हैं, जो एडवांस लेवल स्पीकर्स हैं, उनके साथ आप असिस्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपके मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, आप उनकी देखरेख में स्पेनिश में काम कर सकते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशंस कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, रिटन कम्युनिकेशन एंड वर्बल एज वेल। और इसमें एक और एवेन्यू खुल जाता है बहुत अहम, वो है टीचिंग का। सो अ लॉट ऑफ schools and institutions now are promoting Spanish also because of the same reason कि वहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लेकिन पढ़ाने वाले अच्छे ट्रेन टीचर्स बहुत कम हैं। तो इसलिए यहाँ पर एवेन्यूज मिल जाते हैं कि जूनियर क्लासेस वगैरह के अंदर यू कैन इवन टीच इन दीज इंस्टीट्यूशंस व्हिच मे नॉट बी यूनिवर्सिटीज, जहां पर कि अलग लेवल का भी आपका एक्सपेक्टेशन रहता है। तो ये टीचिंग एवेन्यूज भी खुल जाते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ रोल्स व्हिच आई मेंशन्ड टू यू पहले साल के एंड पे, BPOs, KPOs, एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज। तीसरा साल का खत्म होते हुए हम B2 हो जाते हैं, व्हिच इज एडवांस लेवल इंटरनेशनल। अब हम पूरे तरीके से वी आर रेडी एंड इक्विप्ड टू गो गन्स ब्लेजिंग लाइक दे से। बहुत सारे एवेन्यूज हैं, आप उसके अंदर हम उनको अलग अलग ट्रैक देने वाले हैं प्रियांशी। जैसे पीपल कैन वांट टू बिकम अकेडमिशियंस देमसेल्व्स, तो ट्रेन द ट्रेनर्स होंगे, उनका ट्रेनिंग का और टीचिंग का ट्रैक बन जाएगा। कोई बिजनेस स्पेनिश की तरफ चले जाएंगे, उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोग इंटरप्रेटर्स और ट्रांसलेटर्स बनना चाहते हैं, जिसके अंदर वो आप यूर लाइक एन एंटरप्रेन्योर ऑन योर ओन। कुछ लोग मास्टर्स या आगे चल के और उसको पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये सारे एवेन्यूज उनको अवेलेबल होंगे, एंड दीज आर द वेज इन विच दैट कैन एग्जिट ऑन ईयर 1, 2 and 3। और हर बार उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्योंकि वो इंटरैक्ट कर सकते हैं। Great. I think that puts in perspective for our students that it's not just learning the language for the sake of it, but it's also to propel their careers. And coming to that, actually, कई बार पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंसर्न होता है, स्पेशली कोविड के साथ और भी ये कंसर्न बढ़ गया है
कि स्टूडेंट, उनके बच्चे जो भी कोर्सेज ऑप्ट कर रहे हैं, उसको लेके क्या वो सेफ ऑप्शन है? यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि हाउ इन योर एक्सपीरियंस language skills propel the career of a young person? Obviously आपने स्पेनिश का करियर अपॉर्चुनिटीज और वो सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन 3 साल का कोर्स कर लिया, जॉब्स मिल गई, लेकिन फ्यूचर में, क्योंकि लाइफ इज अ लॉन्ग थिंग, सो हाउ डज इट प्रोपेल दैट लाइफ फॉरवर्ड? इज I will begin इसका जो फर्स्ट पार्ट मैं आंसर करना चाहूंगी, then you can take it. Sure. प्रियांशी, हमारी एक लाइफ है, राइट? एक इतनी है लाइफ, हमें मालूम है कि दिस इज दिस साइज ऑफ आवर लाइफ. नाउ हाउ कैन यू मेक इट लार्ज? अभी मेरी जो लाइफ है वो ऐसी है, मैं उसके अंदर स्पेनिश है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, पंजाबी है, कुछ लैंग्वेजेस हैं. अगर मैं एक एक करके इन लैंग्वेजेस को अपने से निकाल देती हूँ तो मेरी लाइफ छोटी होती जाती है. ये मैंने इंग्लिश एक्सपीरियंस निकाल दिया, ये मैंने स्पेनिश एक्सपीरियंस निकाल दिया, ये मैंने फ्रेंच एक्सपीरियंस निकाल दिया, ये मैंने अपना पंजाबी निकाल दिया. अब मेरे को सिर्फ एक हिंदी आती है. सो मेरा दायरा ये है, जैसे ही हम और लैंग्वेजेस सीखते हैं हमारा दायरा बढ़ता है, हम रियल सेंस में ग्लोबल बनते हैं. आज ग्लोबल बनने में एक जूम कॉल चाहिए, एक कनेक्टिविटी चाहिए. तो उसके लिए जो आपकी जो वर्ल्ड है वो खाली इंडिया या दिल्ली या आपका रीजन नहीं रह जाता, पूरी दुनिया है. So that's how it increases your employability, not only in terms of earning money, but also in terms of आपकी पर्सनालिटी. आप एक पर्सनालिटी और आपकी थिंकिंग बहुत अलग लेवल पे ग्रूम होती है. आप इंटरनेशनली सोचते हैं, आप इंटरनेशनली काम करते हैं, आप इंटरनेशनली जीते हैं, लाइक अ ट्रू ग्लोबल सिटीजन. So I think wonderful. मुझे भी ये दायरा वाला किस्सा समझाया गया था कुछ साल पहले, and that is how I really appreciated it. That how you add to your life. Actually, that time the expression Shalu used was, you can live 2 lives in 1 life if you add another language to your mother language, whatever you have learned. और वो फैक्ट है. तो if I can only add to it, Priyanshi, what happens is, जैसा उन्होंने बताया आज की डेट में, और खास करके अब इतना डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, आप यहाँ पर बैठ के पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं. आपके लिए एक नई लैंग्वेज सीखने से सडनली 500 million people, 50 करोड़ लोग नए जुड़ गए आपके साथ. यह अविश्वसनीय है. इट इज अनबिलीवेबल. How by learning a language suddenly opened doors and you said hello, hola to 50 crore people. Yes. It is mind-boggling कि 50 करोड़ नए लोगों से मिलने के लिए, जुड़ने के लिए, उनकी भाषा समझने के लिए एक एक करके हर प्रांत में जाके कितना मुश्किल है. So I think we are blessed कि हम इन समय में अब हैं जहाँ की सब कुछ हमारे लिए कितना आसान हो गया है कि हम ये चीजें सीख सकें and add to our life, to our experiences. और ये सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी की बात नहीं है. जैसा शालू ने कहा, आप एक ज्यादा ग्लोबल सिटीजन बनते हैं. यू आर एबल टू अप्रिशिएट मोर पीपल, मोर कल्चर्स, मोर कस्टम्स. यू बिकम मोर ग्लोबल इन नेचर, टॉलरेंट प्रोबेबली, एंड दैट मीन्स आपका अपना पर्सनल जो डेवलपमेंट है, जो कि हम सबके लिए बहुत जरूरी है. मैं मानता हूँ जिंदगी में आगे बढ़ने का कि ये भी एक मापदंड होता है. सिर्फ ये नहीं है कि आप पहले कितना कमा रहे थे और अब कितना कमा रहे हैं. ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ व्हाट यू ब्रिंग इन योर पर्सोना. और बाय द वे ये चीजें, एक और कनेक्शन दे देता हूं कॉर्पोरेट का आपको, बिकॉज आई हैव बीन वेरी क्लोज एंड लिव वेरी क्लोजली द 30 years. This persona walks in with you when you walk into a room where people are waiting to assess you. This persona makes an entry. आपको वो 2 या 3 और भाषाएं आती हैं, आप कुछ और देशों प्रांतों के बारे में जानते हैं, कस्टम्स, कल्चर, वो आपके साथ आपकी परछाई की तरह रहता है. And that shows in all of those communications in professional and social settings. So I think if you have to live more, live large, make it large, like Shalu said, I think this is a wonderful avenue. Learn a language, open the doors to another 500 million people. 50 करोड़ लोगों को एक साथ ओला बोलिए, 21 देशों के लोगों को बोलिए, दुनिया भर में बोलिए, 4 कॉन्टिनेंट्स में बोलिए. It is a beautiful avenue that way also.
So make your life large, basically, is the mantra, I would say, who are thinking of joining this course. So coming to, because we've talked about even personal persona so much, because I know that you both have had brilliant trajectories with your association with Spanish, both personally and professionally. तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर बताएं कि कितनी कि स्पेनिश की वजह से आपकी खुद की लाइफ कितनी एनरिच हुई है। मैं आज से शुरू करती हूँ, फिर रिवाइंड करती हूँ। आज अगर मैं नेटफ्लिक्स खोलती हूँ, तो मेरे पास बहुत सीरीज़ है देखने के लिए। पैंडेमिक के टाइम में घर में बैठ के मुझे बोर होने की ज़रूरत नहीं है कि अब हिंदी में कौन-सा कुछ नया आ रहा है। मेरे पास दुनिया भर की चीज़ें हैं देखने के लिए। So that's one thing which gives you the opportunity to do that. But yes, talking about it on a more serious note, uh, this language has made me very tolerant, and it's made me very uh, loving and very respectful towards other cultures. मेरी पर्सनालिटी बहुत चेंज हुई ओवर द इयर्स, फ्रॉम अ लिटिल शाई गर्ल टू एन आउटगोइंग पर्सन। और ये एक लैंग्वेज आपके साथ कर सकती है, जहां आप पर्सनालिटी में बहुत डेवलपमेंट होती है, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आउटगोइंग बनते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट बनते हैं। सो दैट इज हाउ इट हैज चेंज्ड मी एज अ पर्सन। So since we walked this journey together, मैं सिर्फ 2 मिनट में आपको कनेक्शन बताऊंगा इसका। बड़ा इनक्रेडिबल बिल्कुल। शुरुआत हुई कहाँ से थी, क्यों स्पेनिश हमारी जिंदगी में आई, कैसे आ गई। 2002 24 दिसंबर मायामी फ्लोरिडा में, यूएस में हम वेकेशन पे थे, हम छुट्टी में थे, और हम दोनों बहुत अच्छे डांसर्स थे। हम डांस करते हुए मिले थे बहुत साल पहले, तो हमें लगता था हमें वी आर रियली ग्रेट डांसर्स। एंड हमने वहां पर कुछ लोगों को डांस करते हमने कुछ लोगों को डांस करते हुए देखा, और वो हमें पता नहीं था क्या डांस था। हमने देखा गाना खत्म हुआ, सब लोगों ने पार्टनर बदले, एक और गाना शुरू हुआ, वो सब लोग फिर डांस करना शुरू हो गया। कोई किसी को बम्प नहीं कर रहा था, कोई गिर नहीं रहा था। ऑल द जेंटलमैन, एंड इट वाज अ कपल डांस। इट सीम के कोरियोग्राफ कर रखा था, लेकिन कोरियोग्राफी हर गाने में बदल जाती थी, और कोरियोग्राफी में हर कोई अलग अलग डांस कर रहा होता था। दिस वाज बियॉन्ड बॉलीवुड फॉर अस। दिस इज नॉट हाउ वी हैड सीन दिस हैपन इन इंडिया। तो व्हेन वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड, वी वर टोल्ड, उस वक्त वो कसिनो दे रोएदा चल रहा था, जो कि एक बड़ा फेमस डांस है उन लोगों का, और कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन सालसा से हुआ। तो हम वहां और रुके। हमने वहां के ही किसी ट्रेनर से, पोर्टो रिकन थे वो हमारे ट्रेनर, उनसे हमने सालसा सीखा, ट्रेनिंग ली। और जब हमने सालसा के गानों पे डांस करना शुरू करा, शुरू में प्रैक्टिस शुरू करी, तो प्रोफेसर शालू जी, अब मैं इनको प्रोफेसर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके दिमाग में सबसे पहले आया, शी सेड, सुनील, आई वांट टू नो व्हाट एम आई डांसिंग टू, आई वांट टू नो द सेंटिमेंट्स। मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ उस भाव के साथ जो ये गाने चल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं डांस तो कर रही हूँ, इसलिए मेरे डांस में वो फील नहीं आ रहा। एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज दैट ऑल ऑफ द सॉन्ग्स, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स दैट वी वर लर्निंग डांसिंग ऑन, जितने भी सालसा के गाने थे, वो सब स्पेनिश में थे। तो इसलिए हम पर वो पहाड़ टूटा उस वक्त कि अब हमें स्पेनिश सीखनी ही पड़ेगी। And that's when we started, and I never went to a classroom formally, so to say, but she did, and then I learned from her. But that is how we learned, and she was adamant कि नहीं, मुझे अगर सालसा पे डांस करना है तो मुझे स्पेनिश सीखनी है। 2002 24 दिसंबर चेंज आवर लाइफ फॉर एवर। उसके बाद स्पेनिश सीखी, फिर सिखानी शुरू करी, पढ़ानी शुरू करी, लिखनी शुरू करी, किताबें लिख दी, और बहुत सारे अच्छे लोगों को इस दौरान मिले। एंड प्रियांशी, इट्स इनक्रेडिबल the kind of people, when I think of Latin American community as well, for example Hispanic community, इतने सारे ambassadors इतनी दूर के देशों से आए, इंडिया में आए, उन्होंने देखा कि हम इतने प्यार से उनकी लैंग्वेज बढ़ा रहे हैं, उनका कल्चर बढ़ा रहे हैं। they all became family and friends। यकीन मानिए, मैं आज बड़े गर्व के साथ और प्रेम से कह रहा हूँ, विनम्रता से, कि शायद दुनिया के कोई ऐसा देश हो जहां पर हमें पता है कि अगर कहीं पर भी कोई इस कम्युनिटी से हो, whether from the Latin diplomatic community or cultural community or dancing communities, we just have to say we are traveling to that city, और 10 लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, you come and stay with us, we'll take you around the city, हम आपको घुमाएंगे, फिराएंगे, दिखाएंगे। ये फीलिंग, ये फैमिली की फीलिंग और ये कनेक्शन आपका कहीं ना कहीं उस लैंग्वेज से,
उनके कल्चर से, उसकी रिस्पेक्ट से, वो म्यूचुअल टॉलरेंस से और इस लैंग्वेज के कनेक्ट से आती है प्रियांशी। Great. और इसके साथ हम किसी का भी, मेरे को आई फील दिस, दिल जीत सकते हैं उनकी भाषा में बात करके। True. आप जब उनके साथ उनकी भाषा में बात करते हैं तो उनके हाथ ऐसे खुल जाते हैं, चाहे वो पर्सनल रीजन हो, चाहे वो प्रोफेशनल रीजन हो. सो इट्स वेरी कनेक्टिंग. Great. I sometimes had goosebumps when you both were talking because, I mean, it's just amazing to know how, this whole world, although you're coming from the point of view of education, employment, but so many avenues it opens for you, especially in terms of creating connections. हमारी ऑडियंस जो हमारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि व्हेन यू हियर शालू एंड सुनील, कुछ चीज़ें चाहे आप अपना अगर आप कल्चरली इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जॉब्स इज़ वन थिंग, but if you are interested in international experience, in experiencing how different cultures navigate their lives in different countries, definitely, if you have those inclinations, do come and register for this course. The applications are open. We will also post the link of Mundo Latino. You can check out and see what an amazing work they are doing. We are very privileged, Shalu and Sunil, that you both are part of, very important part of this journey. And thank you both so much. And I really hope that, when in September the course launches, we all will also dance together. So. Sure, Priyanshi, thank you very much for giving us this opportunity of taking this language, to the university, to our students. We are equally privileged to be a part of and to be partnering with the university. So yeah, once again, Priyanshi, thank you very much and our heartfelt congratulations. बहुत बहुत बधाई आपको Thank you. और दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी को कि वो इतना मतलब of all the things, बड़ा प्रोग्रेसिव एक सोच चाहिए वो आपके. We have met, we have had the opportunity of meeting the Honorable Vice Chancellor Ma'am as well and others. वो टीम से ही नजर आता है, तो ये बहुत अच्छा आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है. And we will do everything we can to make sure कि language is life. अगर हम इस तरीके से समझें, we will try and bring that spirit, that joy of learning, the fun and the exciting and the part of it and the enthusiastic part of it with a purpose and a vision of getting people to get to their goals. वो जो भी चाहते हो अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ के अंदर, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें and they should be able to get to that goal soon. Great. So how would you say that? Bravo? No. Yeah, bravo. You can say bravo. See? So I would not like to end this by saying bye in Spanish. I would like to end this or say, jaldi milte hain by saying hola. We are Hola. open the doors. Please, you're welcome to enter and be a part of this beautiful Latin Hispanic world here in India. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.